Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 103 Political Theory, Concepts and Debates. So our third question is explain the relationship between rights and obligations. Rights and obligations are closely interconnected concept in political theory. A right is a justified claim that an individual can make, while an obligation is a duty or responsibility that individuals or institutions must perform. Rights cannot exist effectively without corresponding obligations. राइट्स और ऑब्लिगेशन आपस में जुड़े हुए हैं. राइट्स ये वो जस्टिफाइड क्लेम्स हैं जो एक इंसान दूसरे से या सिस्टम से मांग सकता है. ऑब्लिगेशंस ये वो ड्यूटी या जिम्मेदारी है जो किसी इंसान या इंस्टीट्यूशन को पूरा करनी पड़ती है. बिना ऑब्लिगेशंस के राइट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अगर आपके पास कोई अधिकार है तो किसी और की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस अधिकार का सम्मान करे. Whenever a person possesses a right, someone else has a duty to respect or protect that right. For example, if an individual has a right to life, others have an obligation not to harm that person. Similarly, the right to education creates an obligation on the state to provide educational opportunities. जब आपके पास कोई राइट होता है तो किसी और की ड्यूटी बनती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे या उसे उसका रास्ता ना टोके. एग्जाम्पल 1, राइट टू लाइफ. अगर आपके पास जीने का अधिकार है तो दूसरों की ये ड्यूटी है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए. एग्जाम्पल 2 है राइट टू एजुकेशन. अगर बच्चों का पढ़ने का अधिकार है तो स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है कि वो स्कूल्स और एजुकेशन प्रोवाइड करें. Political theorists often describe rights and obligations as two sides of the same coin. Rights empower individuals while obligation ensures that those rights are respected and maintained. Without obligations, rights would become meaningless because there would be no mechanisms to protect them. पॉलिटिकल थियोरिस्ट कहते हैं कि राइट्स और ऑब्लिगेशंस को अलग अलग नहीं किया जा सकता. राइट्स लोगों को एम्पावर करते हैं, शक्ति देते हैं. ऑब्लिगेशंस ये इंश्योर करते हैं कि उन राइट्स का सम्मान हो. बिना ऑब्लिगेशंस के राइट्स सिर्फ कागज़ पर रह जाएंगे क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई सिस्टम नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. In democratic societies, citizens enjoy numerous rights such as freedom of speech, freedom of religion, and political participation. At the same time, they are expected to fulfill obligations such as obeying laws, paying taxes, respecting others' rights, and contributing to public welfare. डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में सिटीजन्स का रोल. डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को कई राइट्स मिलते हैं जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. लेकिन इन्हें बदले में कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं. कानून को मानो, टैक्सेस पे करो, दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करो, पब्लिक वेलफेयर मतलब समाज की भलाई में कंट्रीब्यूट करो. द स्टेट हैज़ also has obligation towards citizens. Governments must protect fundamental rights, maintain law and order, and provide public services. Constitutional democracies establish institutions such as courts and human rights commissions to ensure that these obligations are fulfilled. सरकार की भी सिटीजन्स के प्रति कुछ फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस होती हैं. कानून और मतलब लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून और व्यवस्था बनाए रखना, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कोर्ट्स और ह्यूमन राइट्स कमीशंस बनाना ताकि लोगों का राइट्स सेफ रहें. The relationship between rights and obligations extends beyond legal duties. It also includes moral and social responsibilities. For example, individuals have a moral obligation to respect the dignity of others and promote social harmony. Social cooperation becomes possible only when people recognize both their rights and responsibilities. राइट्स और ऑब्लिगेशन सिर्फ कानूनी नहीं होती बल्कि मॉरल भी होती हैं. सोशल हार्मनी
मतलब भाईचारा तभी बनता है जब लोग सिर्फ अपने अधिकार ना मांगे बल्कि अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को भी समझें, जैसे दूसरों की डिग्निटी का सम्मान करना। Human rights discussions at the international level also emphasize obligations. States are expecting to protect human rights, prevent discrimination, and uphold international standards. Citizens likewise have responsibilities towards society and future generation. इंटरनेशनल लेवल स्टेट्स की ऑब्लिगेशन है कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करें और डिस्क्रिमिनेशन को रोकें। फ्यूचर जनरेशन आज के सिटीजन्स की ये जिम्मेदारी है कि वो आने वाली पीढ़ी मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा समाज और एनवायरनमेंट छोड़ कर जाएँ। राइट्स और ऑब्लिगेशन एक बैलेंस बनाते हैं। अगर हम सिर्फ राइट्स चाहते हैं और ड्यूटीज़ नहीं निभाना चाहते तो समाज सही से काम नहीं कर पाएगा। Excessive emphasis on rights without obligations can lead to selfishness and social conflict. Conversely, focuses only on obligations may result in oppression and loss of freedom. Therefore, a balance between the two is necessary for a healthy democratic society. Rights without obligations. Excessive emphasis on rights without obligations can lead to selfishness and social conflict. अगर हर इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे और राइट्स की बातें करेगा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगा तो लोग स्वार्थी बन जाएंगे। इससे लोगों के बीच टकराव मतलब कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई सिर्फ लेने की कोशिश करेगा, देने की नहीं। इसका उल्टा भी खतरनाक है। अगर किसी पर सिर्फ जिम्मेदारियां थोप दी जाएंगी और उन्हें कोई अधिकार ना दिया जाए तो ये एक तरह का शोषण मतलब ऑपरेशन है। ऐसे माहौल में लोग आज़ादी से जी नहीं सकते और उनका दम घुटने लगेगा। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए दोनों के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है। आपको आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन उस आज़ादी के साथ साथ दूसरों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। In the conclusion, rights and obligations are mutually dependent. Rights provide freedom and protection, while obligation ensure respect and accountability. A society that successfully balances rights with responsibilities promotes justice, democracy, and social harmony. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका राइट किसी और का ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका राइट टू लाइफ है तो ये दूसरों का कर्तव्य है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। राइट्स हमें आज़ादी और सुरक्षा देते हैं, ऑब्लिगेशन हमें दूसरों के प्रति अकाउंटेबल बनाते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तभी समाज में जस्टिस, डेमोक्रेसी और सोशल हार्मनी बनी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ब्लॉग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।